Good morning, students. In today's class, we will discuss about exception of law of supply and equilibrium with the help of demand as well as supply curve. Now, students, one student asked me the question that, ma'am, why we have positive, we can say, relationship between demand and supply, demand and price, and why we have demand and supply, why we have positive relationship, and why do we have negative relationship between price and demand. The reason is, whenever you learn your you can say first equilibrium, you need to understand that you can say demand जब हम स्टडी करते हैं तो you have to think that you are a customer. जब आप डिमांड चैप्टर पढ़ो तो सोचो कि मैं एक कस्टमर हूँ, लेकिन जब आप सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हो तो सोचो कि मैं एक सेलर हूँ. तो एज ए व्हेन यू आर यू कैन से डिमांडिंग, यू विल ऑलवेज डिमांड. जब आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप सबसे सस्ता ढूंढोगे. लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो आप सोचोगे कि थोड़ा और मिल जाता. सपोज अगर आपके घर में कोई पुराना फर्नीचर है, पुरानी कार है, जब कोई परचेज करने आएगा तो वो बोलेगा मैं आपको 1 लाख दूंगा, और आप क्या बोलोगे, नहीं मैं तो 1.5 लाख दूंगा, आई विल सेल माई कार ओन फॉर 1.5 लाख. जब परचेज करने आएगा वो बोलेगा आई विल परचेज द कार फॉर 1 लाख. सो सप्लाई चैप्टर का जब हम स्टडी करते हैं तो वी विल स्टडी इट एज अ व्यू पॉइंट ऑफ एज पर द व्यू पॉइंट ऑफ अ सप्लायर. Fine. Other than that, we will complete the chapter today, and I want all of you to complete the exercise and revise your chapter number 1, 2, 3, and 4. We will have your you can say examination of chapter 1, 2, 3, and 4 with the help of Google Forms, most probably tomorrow. Okay. So let us start with your session today. Okay, students. So in the last class, we discussed about your increase and decrease of supply and expansion and contraction of supply. Today we'll discuss about today we'll discuss about exception of law of supply. That means that the law of supply, what it states, that when the price increases, when the price increases, at that time the supply increases. ठीक है. Now this may not happen in certain cases. When would it be? That would become the exception. Whenever this kind of thing happens, it will become the exception of your law of supply. ओके. मेरे को जरा पेंट ब्रश थोड़ी मोटा करने दो, क्योंकि कल बच्चों की कंप्लेन थी कि मैम हमको दिखाई नहीं देता आप क्या लिखते हो. ठीक है, तो 12 रखते हैं, देखते हैं. Okay, and so the first one will be your rare goods. Rare goods कौन से होते हैं? Like for example, गांधी जी की छड़ी है ना, कि गांधी जी की जो छड़ी है, this it is rare, it is antique, है ना, which will not be cannot be increased, where the supply cannot be increased. गांधी जी की छड़ी, या फिर ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी ने जिस रस्सी से अपनी बकरी को बांधा था, या फिर हम बोल सकते हैं मोहनजोदड़ो के यू कैन से ज्वेलरी मिल जाएगी आपको, पर मोहनजोदड़ो की एरा की ज्वेलरी. ठीक है. उसके अलावा है आपका एंशिएंट आइडल्स है, मैन्युस्क्रिप्ट है, दे आर रेयर. ठीक है, दे डोंट हैव सप्लाई. नाउ एक वो आएगा कि सप्लाई इटसेल्फ, द एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई, यू कैन से exception of law of supply itself have the exceptions. Why? Because rare goods are something which are stock. Rare goods जो पहले बन चुके हैं, पास में बन चुके हैं, they are just stock, they are not supply. Right? So for the stock, when the price increases, the supply will not increase. मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई प्राइस कोहिनूर है, फॉर एग्जांपल कोहिनूर डायमंड है, उसकी वैल्यू सिर्फ इसीलिए नहीं है कि इट इज़ अ डायमंड, इट इज़ हैविंग इट्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. उसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है. ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से दैट यू कैन से डायमंड इज़ हैविंग इट्स वैल्यू. सो इफ़ द प्राइस ऑफ कोहिनूर इंक्रीजेस, वी कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कोहिनूर. हम ऐसा नहीं बोल सकते चलो 10 कोहिनूर और बना देते हैं. वी कैन मैन्युफैक्चर you can say
diamonds, but we cannot, it is impossible for an individual to manufacture Kohinoor, go back to, you can say, our past, और फिर जिस तरह से इंडिया से वो हीरा चला गया था, टीपू सुल्तान से ले लिया गया था, वो सब चीज़ें जो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है वो उसमें हम किसी भी हीरे में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है. सो रेयर गुड्स की जो है, you cannot increase the supply even if the price of those goods increases. So this first one would become your exception. Second is your perishable goods. Perishable goods में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है eggs, fish, ripened foods, flowers, etc. So even if the, you can say, price of this perishable goods increases or decreases, you would say, like for example price of for example fruits decreases, so we cannot store fruits for maybe months together. मैं fruits को months together के लिए store नहीं करूँगी, so I won't be able to store. So even if the price decreases, the supply may remain constant or it may not reduce, क्योंकि normally जब price कम होती है, सब्जी वाला है ना, वो आपके वहाँ पे आता है, वो बोलता है कि मैं 10 रुपये में सब्ज़ी लेके आया था, आप बोलो मैं तुझे 10 रुपये तो नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सिर्फ 5 रुपये दूंगी. तो इवन इफ यू डोंट, यू कैन से, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग हिम full money, he may be forced to, you can say, sell that product to you because it is perishable in nature. उसे पता है कल जाके तो ये ख़राब हो जाएगा और फिर मुझे उसके 5 रुपये भी नहीं मिलेंगे. पहले के ज़माने में कहते थे इन द ओल्ड एंशिएंट टाइम की दूध की नदियाँ बहती थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट, यू कैन से, स्टोर मिल्क को हम स्टोर नहीं कर सकते थे, तो उसका दूध का क्या करेंगे, तो दही बनाएंगे. दही भी कितना बनाओगे, दही को भी कितना स्टोर करोगे, कितने दिन तक स्टोर करोगे. तो फिर क्या करते थे लोग, जो शाम सुबह से कुछ दूध निकालते थे, दे वुड, यू कैन से, गेट द मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स, और शाम तक जो बिकता है, ठीक है, नहीं तो शाम को वो गरीबों में बांट देते थे. दे वुड, यू कैन से, गिव इट टू द पुअर पीपल को दे देते थे, और कोई अगर लेने वाला ना हो तो उसको फेंक देते थे, क्योंकि दूसरे दिन वो जो दूध है वो ख़राब हो जाएगा. इट वॉज पेरिशेबल इन नेचर. But again, this exception itself is not an exception in today's world. आज के वर्ल्ड में ये exception नहीं रहा है. Why? Because we have, you can say, number of option to store even the perishable goods. हमारे पास high range वाले cold storage है जो वो goods को महीनों तक या फिर for months or for years it would be able to store. So both the exceptions are debatable in nature, because rare goods are not supply. We are talking about law of supply. We are not talking about, you can say, law of stock. Rare goods are stock. They are not supply. And then perishable goods, again, nowadays in modern time, it can be preserved and it can be sold in future. It depends on the liking of the seller. अच्छा, whenever you are learning this chapter, जब आप ये chapter पढ़ रहे हो, you have to think that you are a seller. जब आप डिमांड वाला चैप्टर पढ़ोगे तब अपने आप को फिट करो इन द, यू कैन से, क्राइटेरिया ऑफ अ, यू कैन से, कस्टमर. बट जब आप सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, एट दैट टाइम यू हैव टू फिट योर सेल्फ इन द क्राइटेरिया ऑफ अ डिमांड, और यू कैन से इन द क्राइटेरिया ऑफ अ सेलर. ठीक है. So this is all about your exception of law of supply. Let us move further. Two exceptions are there. Then we have the price determination in the market. Now for price determination in the market, the thing is, it is determined with the help of two very important criteria, that is, you would say, supply and demand. As you all know that the demand curve, it is negative in nature. Demand curve is negative and supply curve is positive. Supply curve क्या है, SS curve है ये. It is positive, that when the price increases, at that time the supply will increase. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है. बट इन केस ऑफ डिमांड, when price increases, supply demand decreases. So हम प्राइस इंक्रीज की बात करें तो विद द हेल्प, ड्यू टू व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई विल हैव अ पॉजिटिव कर्व, डिमांडर विल हैव अ नेगेटिव कर्व. तो जब मैं सपोज मैं एज अ कस्टमर जाती हूँ, तो जब चीज़ महंगी हो जाएगी तो मैं परचेज़ नहीं करूँगी, आई विल नॉट परचेज.
So what would happen? That would force the market to come down somewhere. So and wherever this, you can say, demand and supply meets, when, like for example, आप इसके schedule में भी देख सकते हो, you can see in the schedule that the price of commodity when it was 10, the price of commodity 10 थी at that time. नॉट, इट इज़ नॉट, दिस इज़ प्राइस. ओके, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है बेटा टेक्स्ट बुक में. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. ये जो है ये प्राइस है, दिस इज़ योर डिमांड. ठीक है, दिस माइट बी योर डिमांड एंड दिस इज़ योर सप्लाई. तो प्लीज़ चेंज दिस सेकेंड कॉलम. ये सेकेंड कॉलम की जो हेडिंग है उसको काट दो और वहाँ पे प्राइस ऑफ कॉमोडिटी की लगे लिखो डिमांड ऑफ कॉमोडिटी. व्हाट यू विल राइट इज डिमांड ऑफ कॉमोडिटी. ठीक है, समझ में आया? पहले सब लोग लिख लो टेक्स्ट बुक में अपनी, देन विल कंटिन्यू. एक बार पॉज करके लिख लो. फाइन. तो अब यहाँ पर ये है कि व्हेन द प्राइस वाज 10 एट दैट टाइम मार्केट में डिमांड थी ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, एट दैट टाइम डिमांड वॉज 1000 बट द सप्लाई वॉज ओनली 200. यानी एक्सेस डिमांड कितनी थी? 800 की. तो लोगों को डिमांड थी, सप्लाई कम थी, तो क्या हुआ उसकी वजह से? प्राइस इंक्रीज्ड. दिस स्कैरसिटी, इस टाइम पे क्या चल रहा था? हियर वी हैव स्कैरसिटी. ये क्या है? स्कैरसिटी. मतलब प्राइस, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, दैट इज स्कैरसिटी. तो दिस स्कैरसिटी लेड टू द इंक्रीज इन द प्राइस. उसकी वजह से प्राइस बढ़ गई स्कैरसिटी की वजह से. So price increased to 20. At that time, you can say demand was reduced 100 से, तो 1000 से reduced to 800. And here the supply increased क्योंकि यहाँ पर इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ पर डिमांड जो कर रहे हैं उनका प्रॉफिट कम हो रहा है. Got it? So the demand decreased but supply increased. But still यहाँ पर demand is more and supply is less. So still we have scarcity. अभी भी हमारे पास scarcity है. तो स्कैरसिटी की वजह से अगेन द प्राइस इंक्रीज टू 300. तो 300 इज अ पॉइंट एट दैट टाइम द डिमांड वाज 600 एंड सप्लाई वाज 600. मतलब मार्केट में 600 यूनिट की डिमांड थी और 600 यूनिट की ही सप्लाई थी. एंड ड्यू टू दिस यू कैन से दिस वुड बी योर पॉइंट वेयर डी इज इक्वल टू योर एस. अगर हम लोग यही चीज़ डायग्राम में देखें तो इट विल बी समवेयर हियर. This is a point of equilibrium where D is equal to your S. Got it? Okay. So let us move further. तो यहाँ पर क्या है? This is your point of equilibrium. ये जो point है, this is your point of scarcity. And over here, when we move from 30 to 40, अभी भी अगर price बढ़ रही है, and we move from 30 to 40, then what would happen? That you can say price of a commodity. सॉरी, नॉट प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, दिस इज़ योर सप्लाई. मैंने आपको बोला था, सॉरी, डिमांड है ये आपका. तो व्हेन प्राइस इंक्रीज तो डिमांड अब कम हो जाएगी 400 पर, बट सप्लाई बढ़ जाएगी. नाउ दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अबंडेंस. ये कौन सी सिचुएशन है? दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अबंडेंस. अगेन फ्रॉम 40 to 50 दिस विल बी योर सिचुएशन ऑफ अबंडेंस. सो आई कैन पुट इट इन योर डायग्राम. यू कैन से शेड्यूल. दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम, this is scarcity, and these 2 points are scarcity point, these 2 points are abundance point. So abundance will lead to equilibrium or scarcity will lead to equilibrium, but this is like a swing. जैसे झूला आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है ना, बट एट द एंड ऑफ द डे जब झूला सब जगह से घूमकर फिर इट विल कम टू अ स्टेडी पॉइंट, दैट इज योर इक्विलिब्रियम. सो इन मार्केट ऑल्सो सप्लाई और डिमांड के पुल एंड पुश की वजह से प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, एंड एट सर्टन पॉइंट दे वुड मीट ईच अदर, एंड दैट वुड बी योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द मार्केट. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और डायग्राम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. क्लियर विद दिस? सो विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर. इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू योर होमवर्क फॉर टुडे वुड बी कंप्लीट योर एक्सरसाइज of chapter 4, and maybe tomorrow we will have your test for chapter 1, 2, 3 and 4 in with the help of Google form. Google form की मदद से
कल हम लोग इसका टेस्ट लेंगे. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एंड यू कैन से give the test with proper, you can say, preparation. Okay, you all know that how to give the test, but still we will have one meeting about that and then we will have the test. So with this we complete your lecture. I want all of you to stay home, stay safe and prepare for your test. Okay, goodbye for now, students.